मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। Already I can see सबसे पहले I can see the gaslighting in one मैं frame. आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आयोजित इस Look at this. Phase 1 successfully completed in Bihar with zero appeals. Lie! Such a lie. Such a big lie already. Just शुरू किया in like 15 seconds. Lie. बिहार में जब 7.5 करोड़ मतदाताओं ने चुनाव आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब काम किया तो कोई भी परेशानी नहीं हुई। कोई भी परेशानी नहीं हुई. Like how can he freaking say this with a straight face? I don't get it. Like there are like 1,000 reports out there on video where people are like literally distressed that their voting right is going away or already gone. And this guy is like, हाँ कोई भी परेशानी नहीं हुई, मेरे को तो कुछ दिखता ही नहीं है. I don't see jack shit. Arohi is maintaining a lie counter and she has counted 11 already. Seriously. तो आपके पास घूमते फिरते वो इन्यूमरेशन फॉर्म भी आएगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म पर ही दस्तखत करके जमा कराना है। इस स्थिति में कोई डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने की आवश्यकता नहीं होती। What? Did he did not just say that. He's saying that they're going to completely depend on the enumeration bit. So essentially, if you sign it, we request you please sign it only once. But if you don't, क्या कर सकते हैं, तुम्हारा नाम आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा. Wait, did he just admit to the fact that they have completely bungled up the SIR exercise? That was, and this is in an election state, by the way. Did he just admit that he completely bungled up the entire voter list of Bihar? Hello. We are going to watch Ganesh Gaslighter again. So apologies in advance, dear friends. This is a press conference by the Election Commission of India. They're just gathering right now. So we are waiting. I am expecting them to announce a nationwide SIR, honestly. I just want to see what is the criteria because they completely bungled up the Bihar SIR. Now let's see what they will do for the rest of the nation and how they are going to make us suffer. And also please be ready with your dictionaries because Ganesh Gaslighter is going to give us some new words. साझा करनी चाहिए क्या? विकेंद्रीकरण, प्रसारण, इतने लोग हैं आज. श्री भानु प्रकाश जी, More than usual. DGIT, Mrs. Seema, Ms. Shubhra Saxena, Director ECI, Shri Vijay Pandey ji, DDG Law. I am Ashish Goel, DG Media. Wait, it's going to be in English. As always, the format of our PC would be, we'll start with the address by the Honorable Chief Election Commissioner, which will be followed by a presentation that will be followed by a question answer session. Oh, presentation देने वाले हैं. Presentation, guys. Presentation. Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi, इलेक्शन कमीशन के सीनियर ऑफिसर्स, मीडिया के हमारे साथी और आपके माध्यम से जुड़े हुए इस देश के सभी मतदाता, आप सबको नमस्कार। आज हम सब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे चरण के रोल आउट के संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। Already I can see सबसे पहले I can see the gaslighting in one frame. मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आयोजित इस Look at this. Phase 1 successfully completed in Bihar with zero appeals. Lie! Such a lie. Such a big lie already. Just शुरू किया in like 15 seconds. Lie. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के इस पावन अवसर पर बिहार के सभी मतदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के शुभ दिन Oh my God. मैं बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को विशेष रूप से नमन करता हूं, जिन्होंने निर्वाचन आयोग पर अटूट विश्वास जताया है और एसआईआर में पूर्ण भागीदारी निभाई और अब इस चुनाव में मतदान करने के लिए उत्साहित हैं। शुरुआत में महाभारत का कैरेक्टर अर्पण कर लिया है ज्ञानेश गैसलाइटर ने विथ लाइक ऑल दोज वर्ड सैलड्स दैट ही जस्ट गिव यू. I don't think I understood 3 of those words. I'm not even going to bother. But chat, if you want, you can translate, please. Any complicated words that you see, please translate so that our viewers can also benefit later in life. And our Shabdakosh improves. शब्दकोश में शब्दों का विस्फोट होगा ये गैसलाइटर के वजह से. ओके, सो प्लीज फेवर, थैंक यू. बिहार में एसआईआर के सफल संचालन के बाद आयोग ने देश के सभी 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए. इन बैठकों में एसआईआर से संबंधित अनुभवों, तकनीकी प्रगति और भविष्य की दिशा निर्देशों पर भी व्यापक चर्चा की गई. पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से मैनुअल भी और तकनीकी तरीके से भी दोनों स्तरों पर मिलान का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है. व्हाट? और इसके तैयारी के आधार पर अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा. चयनित राज्यों में मतलब सिलेक्टेड स्टेट्स में, नॉट ऑल. एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना. अच्छा. और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना. अच्छा. आइए अब पीपीटी के माध्यम से आपको विस्तार में एसआईआर के इस फेज 2 के बारे में बताते हैं. बताइए बताइए बताइए. जैसा कि आप सबको पता है, एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया. 90,000 बीएलओस, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा मेरे सामने है कि उन्होंने शुद्ध नहीं किया. नतीजा आपके सामने है, उन्होंने शुद्ध नहीं किया. लिटरली I have given you examples before. Reporters Collective has done multiple reports where they went to places where there is like an entire village living in one house. They did reporting on it. They did a follow-up report saying that despite them doing reporting on it, those errors still exist. So they haven't fixed anything. They have done jack shit. Jack shit. मैं बताऊंगा what is the real objective. I'll repeat it again, but later. Zero appeals. Lie. Lie. बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी. Wow. अब फेज 2 That's a lie, by the way. राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है. 12 states phase 2. किसी भी मतदाता के लिए जो उसकी अर्हताएं हैं वो संविधान के अनुच्छेद अर्हताएं में लिखी गई हैं. अर्थात भारत का नागरिक होना, कम से कम आयु 18 वर्ष की होना, उस विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और किसी अन्य कानून से उसको डिस्क्वालीफाई न किया गया. आर्टिकल 326. एसआईआर की आवश्यकता के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग एक बार आपको बताना चाहेगा कि चुनावी कानून के तहत हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आवश्यक है और या जब भी चुनाव आयोग आवश्यकता अनुसार निर्धारित करे. विगत कुछ दशकों से
Yeah, he's saying the same लगभग thing that is हर on the PPT. राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची के शुद्ध न होने के ऊपर चुनाव आयोग को लगातार शिकायतें दी हैं। Okay, that's true. पहले सन 1951 से लेकर 2004 तक लगभग 8 बार What? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस देश में चुनाव आयोग ने कराया है। Okay. और आखिरी इंटेंसिव This is new? लगभग 21 साल पहले 2002 से लेकर 2004 की मियाद में पूरा किया। 2 साल लगाए, 2 साल, नोट। इस लंबे 2 दौर साल में 2 दशकों से भी अधिक लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं, जैसे कि भारत की विकास गाथा के साथ साथ लोगों का माइग्रेशन के साथ साथ कई बार उनका वोट Duplication. बना रह जाता है और नई जगह भी बन जाता है, अर्थात एक से जगह ज्यादा रजिस्टर होने वाले वोटर्स, अर्थात कई बार किसी की डेथ होने के बाद भी उसका नाम न हटाया जाना या गलती से किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में आ जाना। इन चारों कारणों की वजह से चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि पूरे गलती देश में से चरणबद्ध गलती से तरीके SIR आ जाना। चाहिए। और इसकी पहली कड़ी बिहार आपके सामने समाप्त भी हो चुकी है और बड़े सफलतापूर्वक लोगों ने चुनाव आयोग पर विश्वास भी जताया है। SIR करते समय एक बहुत बड़ी संख्या में चुनावी कर्मी चुनाव आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। क्या चुनावी कर्मी आपको सर? पता होगा एम्प्लॉइज लगभग हर 1000 वोटर के ऊपर एक पोलिंग स्टेशन औसत तौर पर हो जाता है। यस हर पोलिंग स्टेशन पर एक सरकारी कर्मचारी BLO बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पर कार्य करता है। एक विधानसभा क्षेत्र में 300 या 400 के बीच में लगभग पोलिंग स्टेशंस होते हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, वो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, SDM के स्तर के होते हैं और उनके अंडर में ये सारे BLOs कार्य करते हैं। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सहायता करने के लिए असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स भी होते हैं, जो कि फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट लगभग हर तहसील में एक या उससे अधिक होते हैं। ERO एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के लेवल का अधिकारी होता है, जिसकी कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वो मतदाता सूची ड्राफ्ट तैयार करे, जनमानस से मिले हुए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को रिसीव करे और उनके ऊपर एक निर्णय ले और उसके बाद एक फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करे। ओके ERO के इस निर्णय के बाद अर्थात फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद अगर किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले किसी भी मतदाता को अगर कोई भी अपील करनी हो तो वो उस जिले के जिला अधिकारी के पास कर सकता है और अगर वह जिलाधिकारी के निर्णय से भी असंतुष्ट हो तो उस राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास अपनी सेकंड अपील दायर कर सकता है। यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, आई वाज जस्ट वंडरिंग बिहार में व्हाई सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जब SIR हुआ, उसके बाद जो जिला मजिस्ट्रेट्स के पास अपील आई 38 जिलों में वह 0 थी, अर्थात ERO और इलेक्टर्स ने मिलकर और बूथ लेवल एजेंट्स ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया। Wait, sorry, what is this garbage? Like, so the reason why he explained the whole process of who is responsible for what. Good explanation of the process.
You can skip the Hindi bits. You can just read this in English. Thank you, I guess. But he just said that in Bihar SIR case, there were 0 appeals made to even the ERO. That doesn't make any sense, because I know for a fact that many political parties and many people had written to the election commission for claims and objections. You see this, the second read receives and decides on claims and objections. Like literally they were giving like a live count of how many claims and objections have come. So I don't understand. So is appeal different from claims and objections now? So he means that after the claims and objections, someone should file an appeal to get something corrected. So I think that's another layer that he's added on top of it. And now he's trying to say that koi problem nahi tha because appeal nahi kiya kisi ne. It's giant word salad, by the way. So you realize what is happening here. There were thousands and thousands of claims and objections after Bihar SIR, but now the election commission is saying कि किसी ने appeal नहीं किया, and his conclusion is BLOs did great. Such SIR bullshit. के समय EROs और AEROs मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे जिन राज्यों में SIR हो रहा है On 27th अभी होने October. वाला है, Oh, today. उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी। Okay. और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके BLO उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में हैं। जब BLO फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। तो मुझे देना पड़ेगा फिर। इसी तरीके से अगर I was not a voter then. था और उनके पिताजी या माताजी का नाम था तो भी उनको कोई और कागज नहीं देने होंगे। मेरे पिताजी और माताजी नागपुर में है। बिहार जब हमने SIR किया था तो सिर्फ बिहार की अवेलेबल थी और आज पूरे देश की 2002 से 4 में हुए SIR की मतदाता सूची जो लिंक दिया गया है voters.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है और इस मैचिंग को स्वयं भी कर सकता है। BLOs बूथ लेवल ऑफिसर्स SIR की प्रमुख कड़ी होते हैं। जब वो घर जाते हैं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी और व्यक्ति की उम्र उस घर में 18 साल के ऊपर की हो गई हो, तो हाथ की हाथ उसी समय वो उनका फॉर्म 6 भी भरवा लेंगे और डिक्लेरेशन भी ले लेंगे और उसकी मैचिंग और लिंकिंग भी पुराने SIR से कर लेंगे। ओके। कई बार हमारे मतदाता दिस इज न्यू पढ़ने या लिखने में उनको दिक्कत है तो बूथ लेवल So not only are they going to do the enumeration, they are also going to add new voters. That's what he's saying. Form 6 is for adding new voters. So now BLOs will come and they will ask, oh, is there a new person here? And they will take those forms also simultaneously. That's interesting. They didn't do this in Bihar, by the way, because Form 6 were filed later. Once the draft list was out and there were like a bunch of deletions, a lot of people just filed the Form 6 saying they are new voters because their names were deleted. So that also happened. So this is interesting. This is new. ऑफिसर उनको इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में मदद भी करेगा और मदद करने के बाद इस तरह के सारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स मैचिंग और लिंकिंग करने के बाद वो ERO और Make 3 visits. जमा करेगा। कई बार एक बार जब बूथ लेवल ऑफिसर घर जाता है तो या तो कुछ मतदाता अवेलेबल नहीं होते या कहीं गए होते हैं और या उनको मैचिंग या लिंकिंग करने में कोई समय लग रहा हो, तो ऐसे केस में बूथ लेवल ऑफिसर्स दूसरी बार भी जाएंगे और तीसरी बार भी जाएंगे। Okay. 3 बार Now we will BLO test it out. हर घर जाएगा। प्रवासी लोगों की समस्या को हटाने के लिए
जो राज्य से कुछ समय के लिए बाहर गए हुए हैं लेकिन वहीं के सामान्यतः रहने वाले हैं, They are an वो online online भी भर enumeration सकते form. हैं। और खास तौर से कई बार अर्बन वोटर्स को, क्योंकि उनके दिन के समय ही ऑफिस आवर्स रहते हैं, तो वो भी ऑनलाइन भर सकते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर का यह भी कार्य होगा कि जब वो इन्यूमरेशन फॉर्म देता है तो इन्यूमरेशन फॉर्म दस्तखत करके मतदाता को वापस भी करना होता है। तो अगर मतदाता की मृत्यु हो चुकी हो, या वो स्थायी रूप से प्रवास कर चुका हो, या वो एक से जगह ज्यादा रजिस्टर हो गया हो, तो वो उस जगह दस्तखत नहीं कर पाएगा, और ऐसे लोगों की शिनाख्त करना भी बीएलओ की जिम्मेदारी है। What is a शिनाख्त? Delete. एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो शिनाख्त. मतगणना, Correction. वो इन्यूमरेशन फॉर्म की जो फेज होगी, उसमें किसी भी व्यक्ति से किसी और कागज की आवश्यकता नहीं होगी। बस उन्हें अपनी मैचिंग या लिंकिंग दिखानी होगी कि 2003 में किसके साथ है। हैं? नेक्स्ट, Wait, so किसके साथ? Wait. सारे फॉर्म्स मिलने के बाद No, sorry. There will be people who cannot match it according to the state. Wait, they're not going to take any documents. ईआरओ और एईआरओ ड्राफ्ट सूची प्रकाशित करेंगे। ड्राफ्ट सूची में उन्हीं मतदाताओं का नाम होगा जिनके इन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस मिल गए हैं। जिन मतदाताओं की मैचिंग या लिंकिंग नहीं हो पा रही है, 2003 में हैं? कहाँ थे? 2003 में आपके माता पिता भी नहीं थे या कोई भी नहीं था। ऐसे लोगों को भले ही उनका इन्यूमरेशन फॉर्म मिल गया हो, लेकिन नोटिस जारी करेगा ईआरओ और एईआरओ, और नोटिस जारी करने के बाद फिर वो उनकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा, इंक्लूड करने के लिए या एक्सक्लूड करने के लिए, बेस्ड ऑन इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स, जो मैं आगे बताऊंगा। What? ईआरओ So no documents. और एईआरओ की यह जिम्मेदारी होगी कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना, और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में अंदर ना आ पाए। ईआरओ के फैसले के खिलाफ कानूनी तौर पर जिला मजिस्ट्रेट के पास एक अपील होती है, जो मैंने आपको बताया, और जिला मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास भी सेकंड अपील होती है। Wait, they're not going to take any. So far there are no documents, he said. So as far as I understand, what is happening now is that there will be an enumeration phase where the BLO will come at least 3 times to your house, give you the form. You have to fill it. You can also fill it online if you're migrating, if you can't meet the BLO, whatever reasons. And then you have to also prove yourself that you are linked to someone who was in the 2003 list, or you were yourself on the 2003 list. And if you can't, then they will send you a notice, and then you have to prove that you want to be on the voter list according to some conditions which he will reveal later, which he will reveal hopefully in this only. But what? Every young person I know who has migrated to Delhi at this point will get a notice. So Bihar SIR के जैसे भी नहीं है ये. This is even weirder. No documents. इन्यूमरेशन फेज में इन्यूमरेशन फॉर्म की प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मैचिंग और लिंकिंग विद 2002, 3 या 4 इलेक्टोरल रोल्स, और इन्यूमरेशन फॉर्म्स को वापस कलेक्ट करने का कार्य होगा। और साथ ही साथ, जैसा आप सबको पता है, मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। So you see this last one, the last line here, rationalization of polling stations with an upper limit of 1200 voters. That is what I mean is the real objective of this SIR. What they're going to do is they're going to scramble the whole thing so that उनका वोट चोरी पकड़ा नहीं जाएगा. That's the whole deal here. Like Bihar में कर लिया already. They tested it out. There they were asking for documents. Now they are not even asking for documents. They're just not going into it. Now from the looks of it, you have to submit your enumeration form, and if you can't prove that you are either a descendant of someone who was on the 2003 list,
or you yourself are on the 2003 list, then you're screwed. Yeah. So fun होने वाला ना है, लगे, fun होने उसके वाला है. हिसाब से रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस भी Rationalization, scramble कर रही है. सारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो वापस आने थे उनके आने के बाद इलेक्टोरल रोल्स की ड्राफ्ट पब्लिश की जाएगी. ये सारी स्टेप्स वही हैं जो बिहार में हुई हैं. No, वो भी झूठ, उसी के साथ साथ वो भी झूठ. क्योंकि इन्यूमरेशन फॉर्म लेते समय ये पता लग जाता है कि ये व्यक्ति एब्सेंट हैं या शिफ्टेड हैं या डेथ हैं या उनके डुप्लीकेट वोट्स बने हुए हैं, उन सब की लिस्टें बिहार में भी वो सभी बीएलए से भी शेयर की गई थी. पंचायत या पब्लिक ऑफिसेज के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाएंगी और सीईओ के वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति एपिक नंबर लगा के देख सकता है कि उसका, जैसे पिताजी का नाम अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो वहीं पर है कि नहीं. ड्राफ्ट सूची पब्लिश होने के बाद जिन लोगों की मैचिंग या लिंकिंग 2003 या 2 या 4 से नहीं हो पाई है, उनको ईआरओ नोटिस जारी करेंगे. नोटिस के बाद हियरिंग होगी और हियरिंग में जो भी इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं Oh उनको चेक किया shit. जाएगा और ईआरओ ये भी उनसे पूछेगा कि 2003 में आप कहाँ थे या आपके माताजी पिताजी कहाँ थे, जिससे अगर लिंकिंग नहीं भी हो पाई है तो वो भी कर पाए. Oh my God. This is insane. So now they are going to decide what documents you need. Verifying indicative documents. So according to the area and probably the mood of the ERO and AERO, you'll have to show documents. So they might or might not accept whatever document you show. So in some cases they might be like, oh, Aadhaar card dikha do. But in some cases they might be selective and say that, matlab property papers dikha do or whatever. Like they were like looking for 11 documents. We got a sign of what kind of documents they accept. Bolega caste certificate dikha do. Only that we will accept. Or matriculation certificate dikha do. So they are going to decide what documents we have to give now. What? That's साथ mad. ही साथ जिससे कि हमारे मतदाताओं को कोई भी असुविधा नहीं. और Okay. इसकी वजह से आपने देखा होगा बिहार में जब 7.5 करोड़ मतदाताओं ने चुनाव आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब काम किया तो कोई भी परेशानी नहीं हुई. कोई भी परेशानी नहीं हुई. Like how can he freaking say this with a straight face? I don't get it. Like there are like 1,000 reports out there on video where people are like literally distressed that their voting right is going away or already gone. And this guy's like, हाँ कोई भी परेशानी नहीं हुई. मेरे को तो कुछ दिखता ही नहीं है. I don't see jack shit. I cannot even. Like कोई भी परेशानी नहीं हुई है apparently. Arohi is maintaining a lie counter and she has counted 11 already. Seriously. एसआईआर के समय 1200 तक हम पोलिंग स्टेशंस को भी रैशनलाइज कर लेंगे हाँ और वही. कुछ नए पोलिंग स्टेशंस भी खोले जाएंगे. New polling stations also. बदलाव के साथ साथ हाई राइज बिल्डिंग्स में भी होंगे या गेटेड कॉलोनीज में या कई बार जो स्लम They want to scramble the entire list. वहाँ पर. As I told you. इस विषय पर जो ड्राफ्ट पब्लिश होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टी से डीओज चर्चा भी करते हैं और उसके बाद ये 1200 हर पोलिंग स्टेशन की अलग अलग मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है. ये ध्यान रखना होगा कि एक बूथ पर एक फैमिली के या एक घर पर रहने वाले सभी लोगों का नाम एक ही जगह आ जाए, उससे मतदाताओं को बहुत सुविधा होती है. LOL. बिहार में इसमें काफी लोगों ने मिलकर अच्छा काम किया. LOL. Special care to keep all members in one polling booth is what he said. Special care was not taken when there are like there is an entire village in one house. वो चलता है as long as they're in one polling booth. एक घर में 600 लोग 700 लोग चल जाएगा है बिहार में. या जो बिहार का एसआईआर हम लोगों ने कराया उससे चुनाव आयोग को ये भी समझ में आया कि इन्यूमरेशन फॉर्म में एक छोटा सा परिवर्तन करना आवश्यक है. अर्थात जहां रेड बॉक्स आप देख रहे हैं वहां डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसआईआर है. अर्थात 2003 में
अगर आप स्वयं थे तो उसके डिटेल्स भर दें, या 2003 में आपके पिताजी या चाचा या कोई भी उस जनरेशन के थे उनका भर दें, जिससे कि मिलान सरल हो जाएगा। जो इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा, So you have to take photographs, friends. Please keep photographs. They want current photographs because I guess. उसमें काफी चीजें प्री प्रिंटेड होंगी। मतदाता का नाम, उसका एपिक नंबर, उसका पता, सीरियल नंबर, पार्ट, कौन सी असेंबली है, QR code. और उसका पुराना फोटो। QR एक QR code. कोड भी दिया जाएगा, जिससे Okay. कि उस QR कोड को स्कैन करके आप स्वयं देख सकते हैं। सभी मतदाताओं से चुनाव आयोग का यह आग्रह रहेगा कि जहां पेस्ट करेंट फोटो लिखा हुआ है, वहां पर अपनी नई और रंगीन फोटो, कलर्ड फोटो वहां पर अगर लगाएंगे, तो जब भी आपका नया एपिक कार्ड बनेगा तो उसमें वो फोटो लगाई जाएगी, तो अच्छा लगेगा। और नया एपिक कार्ड बना रहे शनाख्त हैं। में भी आसानी होती है, बिकॉज कई बार Oh wait, they're going to make new voter IDs. So we are going to get new cards, new epic cards, all of us. Shit, this is an intense exercise they are doing. Really, really intense. जो प्रीवियस SIR के जो 2 खाने मैंने आपको बताए थे, उसमें स्वयं का अगर नाम है तो पहला जो बाईं तरफ वाला बॉक्स है, जिसमें इलेक्टर का नाम, एपिक अगर उसका है उस समय तो, बिकॉज एक सेकेंड। कई लोगों के पास एपिक नंबर नहीं था। रिलेटिव का नाम, कई So बार फादर का नाम होता है। wait, so now what I have to do is okay, my name, etc., my dad's name, who probably was in the earlier SIR, but wo Maharashtra mein, so I have to give like his details and put Maharashtra there, and that they will match with me. Oh, so now they will know where families have migrated also as a result. Linkages establish कर रहे ये सब. Interesting. Okay. और रिलेशनशिप तो वहां पर फादर होगा, किस जिले में है। जैसे ही आप जिला लिख देंगे या स्टेट या एसी लिख देंगे, तो जो सारी जो मतदाता सूची पूरे देश की अवेलेबल है 2003 में, उससे सेलेक्ट करना और उससे मैचिंग करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपका नाम नहीं है 2002, 3 या 4 की मतदाता सूची में, तो आप अपने फादर, मदर या जो भी उस श्रेणी के जो रिलेटिव्स हैं, उनके डिटेल भर सकते हैं, तो उससे भी ये मैचिंग सरल हो जाती है। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के पीरियड में फॉर्म 7 और फॉर्म 8 की आवश्यकता पड़ती है, और फॉर्म 6 तो खैर चूंकि न्यूमरेशन फेज में ही इस बार हम कलेक्ट कर ले रहे हैं। बिहार में हम लोगों ने उसको बाद में किया था, लेकिन इस बार हम शुरू से ही कर ले रहे हैं। Why though? Why did they change that? जो लिस्ट ऑफ इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, And why didn't they do it in Bihar? 2002, 3 या 4 की मतदाता सूची से मिलान हो चुका है, उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। Okay, there is a list of documents. Okay, let's see. Pension payment order, identity card, government issued bank, post office, PSU prior to 1/7/1987. Okay, birth certificate, passport, matriculation, education certificate, permanent residence certificate, forest right certificate, OBC certificate, NRC, whatever. So it's the same list. Family register prepared, land house allotted. For Aadhaar, commission's directions issued via shall apply. What? For Aadhaar, what is this? Okay, we'll have to see what this is. 9/9/2025 ko they issued some directions. So Aadhaar they have added, but kinda not added. और जिन लोगों का मिलान नहीं हो पाया, वो संख्या काफी कम रह जाती है। सिर्फ उन्हीं लोगों को ये इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। Indicative documents. जो बिहार में थे 11 वो, और आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण चूंकि नहीं है, तो वो आइडेंटिटी पर्पस के लिए लोग दे सकते हैं। ये वो 12 राज्य हैं ये क्या है? जहां पर कल से SIR शुरू होने वाला है। ओ कल से। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप,
मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन 12 राज्यों में कुल So they have West Bengal, but they don't have Assam. That is what is going for elections next. They don't have Assam. Tamil Nadu is also there. Hey. Total 51 crore voters. Okay. Okay, 12 states. मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। Kerala is also there, which is going for लगभग elections. Assam नहीं है. 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। Dates बता. Yeah, शेड्यूल 28 to प्रिंटिंग और 3rd. ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। Okay. हाउस टू हाउस इल्यूमिनेशन 4th to 4th. 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9th December. 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेके 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन 2 months. 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा Okay. और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे। Sufficient time, I would say this time. Like जल्दी में नहीं हो रहा है. Starts on the 4th technically and ends in February. So good amount of time to do this. But that is before the elections happen in those states. So हाँ, decent. This time I think at least जल्दी में नहीं कर रहे हैं. And they've given like claims and objections period for 2 months. So timeline is good. Not bad. Now we'll start with the question and answer session. As per our previous format, we will be taking questions in groups of 5. And please be rest assured that maximum number of questions will be taken. Why? Sir, I will ensure that your question is taken. Please एक be क्वेश्चन seated. ले, एक क्वेश्चन Sir, लो. your question will be taken. No, That's no, all. no, चलिए, एक क्वेश्चन Please लो. don't disrupt the conference. Your question will be entertained and taken. No, this is absolutely true. Push back. Take one question at a time. This is not fair. Like 5 questions and then Gyanesh gives like 3 answers and 2 random answers and they're like, हाँ आंसर कर दिया. नहीं चलेगा. In the interest, no, then I will One not by be one. able to entertain lot of questions. I have so many people. I don't have one person. Your question will be entertained. Good. Yes. One by one. दीजिए इधर. Ass. Excuse me. ऊपर दीजिए, वो ब्लू शर्ट में दीजिए. सर नमस्कार, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। हमारा सवाल ये है आपसे कि आपने जो 12 राज्यों के नाम दिए हैं और केंद्र शासित प्रदेश के, आगामी जो 5 राज्यों के चुनाव है, क्योंकि अगले साल मध्य में वहां चुनाव होने, उसमें असम भी है। Exactly. असम में आपने SIR कराने का फैसला नहीं किया है दूसरे चरण में, तो इसकी वजह क्या है, कारण क्या है? Good. और यहाँ कब कराएंगे? Why not Assam? So I'm Shriparna from the Hindu newspaper. अरे हाँ, In 5 Bihar, questions. The election commission has said that Note new करना epic पड़ेगा cards मेरे को will be भी. given to all voters. What is the progress on that, and will the same be done for all these 12 states and rest of the states undergoing SIR as well? हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि जो वेस्ट बंगाल में विशेषकर जो SIR होगा, तो उसकी मुखालफ काफ़ी समय से सीएम खुद कर रही है। उसको लेकर जो गतिरोध है आपके और उनके बीच में, तो इसको लेकर क्या कोई विशेष बैठक होगी आपके बीच में? Yeah. Damini. Sir, this is Damini from the Indian Express. Yes, sir. Sir, 2 questions. One is, what were the lessons that were learned from the Bihar SIR process? And secondly, sir, in the case of the June 24th order for Bihar, there was instruction to EROs to refer cases of suspected foreign nationals to the competent authority. How many such cases? Yeah, were referred in how Bihar? many And will the cases? Again, instruction thank you. apply to the rest of the states and UTs as well? How many migrants? How many illegal immigrants are a part of the voter list? आसाम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय
नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है, और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता। और Okay. इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। Oh, so NRC जहां has तक not नई been एपिक की completed. बात थी, तो जिन लोगों की एंट्रीज में बदलाव हुआ, जिनके एड्रेस में बदलाव हुआ या जिनके पोलिंग स्टेशन में बदलाव हुआ, उन सभी को नए एपिक बिहार में मिले हैं। और इसी तरह से पूरे देश में भी जहां जहां एंट्रीज में परिवर्तन होगा वहां पर नए एपिक्स मिलेंगे। New Epic IDs, okay. जो मैचिंग और लिंकिंग का प्रश्न पूछा गया, voters.eci.gov.in पे अगर आप जाएंगे तो आप 2002, 2003 और 2004 की मतदाता सूची को स्वयं देख सकते हैं। बीएलओ भी स्वयं देख सकता है। सूची देखने के लिए आपको उसमें सबसे पहले राज्य बताना होगा, फिर आपको जिला बताना होगा, और उसके बाद जिले में वो सर्च की जा सकती है कि मेरा नाम कहाँ है। इसीलिए अगर आप दिल्ली में हैं और आपके अगर माता पिता यूपी के रहने वाले थे, मान लीजिए लखनऊ के रहने वाले थे, तो आपको उधर जाना है यूपी पर, फिर लखनऊ बटन दबाना है, फिर माता पिताजी को वहाँ सर्च कर लेना है और आपको लिंक का वो बटन दबा देना है। इतनी सरल प्रक्रिया उसको हमारे Also, like if it's like different states, also it can be जहाँ तक linked. आधार की बात है, Okay. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार Aadhaar. का उपयोग आधार एक्ट के अनुरूप होगा। और Okay. आधार एक्ट के सेक्शन 9 में ये कहा गया है कि वो कि आधार सिटीजनशिप का डोमिसाइल का या या सेम सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं होगा। नहीं होगा। जहां तक जन्म तिथि की बात है, उसके ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं जहां पर कि ये कहा गया कि आधार जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। Oh और my इसका God, ध्यान what is रखते this? हुए आधार अथॉरिटी ने Oh. अपना नोटिफिकेशन जारी किया। और आज भी Oh अगर God. आप कंप्यूटर से अपना नया आधार डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखा होता है आधार कार्ड पर ही कि आधार कार्ड न तो जन्म तिथि का प्रमाण है, न डोमिसाइल का, और न कि नागरिकता का। आधार कार्ड आइडेंटिटी का प्रमाण है और ई साइनिंग के लिए भी उसका उपयोग हो जाता है। तो आधार कार्ड के बहुत सारे अन्य उपयोग भी हैं। जहां अरे, तक but वेस्ट like- बंगाल की बात है, No, but what, like, so he just explained what Aadhaar card can be used for, but he never said that will it be acceptable for this exercise. I didn't hear him say that no, Aadhaar card is a valid document for this exercise. He just said ki no, Aadhaar is not a part of, like, it cannot be a proof of citizenship or domicile or birth or anything. So that's it. What? संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने दायित्व का पालन करती हैं। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हुए अपने दायित्व का पालन कर रहा है, और इसी तरह से राज्य की सरकारें भी अपने अपने दायित्व का पालन करेंगी। जो बिहार में एसआईआर हम लोगों ने किया और उसमें जो हम लोगों को लगा कि हम मतदाताओं को और सुविधाएं क्या दे सकते हैं, वो मैंने आपको अपनी पीपीटी में बता ही दिया है। और जून 24 का जो ऑर्डर है वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है। Yes. कुछ अरे, instructions भी जारी illegal किए immigrants, हमारे राज्यों के। illegal immigrants. No, see, this is what he means. This is what they mean. एक question लो, because he didn't answer the illegal immigrants question. Bhai, Gyanesh, so slimy these people are. आंसर ही नहीं किया दामिनी का क्वेश्चन। 4 के इलेक्टोरल रोल से किया है। पश्चिम बंगाल से कई बार ये बात आई है कि वो होने नहीं देंगे एसआईआर। ऐसी सिचुएशन में इस चुनाव आयोग क्या करेगा? और दूसरा कि जिस तरीके से वहाँ पे वोटों का मिलान आप करने की सोच रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि बहुत से ऐसी बातें हैं कि वहाँ पे बाहर से आए लोग आ गए हैं और डॉक्यूमेंट्स उनके लगातार रेडी हो रहे हैं। अगर उनके
Sorry, Rajesh is saying yes. He said Aadhaar can be used as an identity card, not proof of citizenship, etc. But he didn't say whether Aadhaar is a valid document for this exercise. दस्तावेज मान लीजिए गलत तरीके से बन गए, उसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे? Wrong documents, incorrect documents. संजय शर्मा आज तक से। सर, बिहार के एसआईआर के वक्त जो श्रंक हुआ था इलेक्टोरल रोल, वो लगभग 6% था सर। लेकिन बिहार के मुकाबले अगर पश्चिम बंगाल देखा जाए तो पूर्व में भी बहुत ही वोलाटाइल स्टेट रहा है। अभी जब से अनाउंसमेंट हुई है पैन इंडिया एसआईआर की, पश्चिम बंगाल खासकर टीएमसी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि देयर विल बी ब्लड बाथ इन वेस्ट बंगाल इफ वोटर्स आर डिलीटेड। तो ऐसे में what will election commission do to counter and restore faith? Again, West Bengal is different as compared to other states. संजय जी। संजय शर्मा आज तक से सर। बहुत सारे लोगों का उन लोगों ने क्वेरी भेजी है कि जिन लोगों के नाम डिलीशन होंगे या हुए हैं, क्या उन सारे लोगों को जिनके कई वोटर लिस्ट में कई जगह नाम हैं या जो लोग स्थायी रूप से पलायन कर गए, क्या आयोग उनको भी नोटिस देकर उनकी रजामंदी लेता है क्या? सर अश्विनी। सर दिस साइड अश्विन कुमार सिंह फ्रॉम एनडीटीवी। सर, सुप्रीम कोर्ट में भी ये याचिकाकर्ताओं ने सवाल किया था कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या उपयोग किया गया बिहार में, जो नाम 2 जगह रजिस्टर थे, और क्या वो एप्लीकेशन अब अभी जो एसआईआर का सेकंड फेज शुरू हो रहा है उसमें भी उपयोग किया जाएगा? सर मेरा सवाल है, मैं पीयूष पांडे हूँ। अरे कितने सवाल ले रहे हो सर? आपने 4 अब 7 हो गए इसमें बताए हैं कि फ्रिक्वेंट माइग्रेशन है, उसमें जो चौथा कारण है रॉन्गफुल इंक्लूजन ऑफ एनी फॉरेनर, तो क्या इसकी भी कोई सूची तैयार की जाएगी चुनाव आयोग द्वारा कि कितने ऐसे लोग पाए गए जिनका रॉन्गफुल इंक्लूजन था? रॉन्गफुल इंक्लूजन जो एसआईआर की जो आपने डेट की बात की, भारतीय नागरिकता कानून के अंतर्गत अगर आप 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में अगर पैदा हुए हैं तो आपको भारत का नागरिक माना जाता है। तो जो व्यक्ति 87 या उसके पहले का बॉर्न है, अगर उसमें 18 साल जोड़ देते हैं तो सन आता है 2003, 4 या 5। इसीलिए जिन लोगों का नाम 2003, 2 या 4 की मतदाता सूची में है, उसकी प्रोबेटिव वैल्यू, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कि वो नागरिक है, उसकी कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए जो पिछला एसआईआर हुआ था वो वाली तारीखें ली जाती हैं। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात एक बार दोबारा उठी है, तो मैं एक बार और स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान के अंतर्गत हर संवैधानिक संस्था को अपना दायित्व निभाना होता है। What is this answer? आर्टिकल 324 सब क्लॉज 6 के तहत मतदाता सूची तैयार करने के लिए या मतदान कराने के लिए जिन भी चुनावी कर्मियों की आवश्यकता चुनाव आयोग को होगी, वो राज्य सरकार मुहैया करा के डेपुटेशन पर देने के लिए बाध्य है। इसी तरीके से कानून व्यवस्था की जो आपने बात की, वो राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और मुझे इसमें कोई भी संकोच नहीं है कि हर राज्य सरकारें चुनाव आयोग की तरह ही अपनी पूरी संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करेंगी और करती रही। So his answer is there are people in West Bengal who are saying we will not let it happen and there might be bloodbath if there is voter deletion. His whole answer was that constitutionally election commission is doing what it is supposed to and state government is responsible for law and order in that particular state. So it's their thing. तुम्हारा देख लो, हम कर रहे हैं जो करने का है. If the consequences of that is a bloodbath or like violence or whatever, वो state government देखता रहेगा. That's his answer. Great. जहां तक डीडुप्लीकेशन की बात की, जब एक बार इन्यूमरेशन फॉर्म एक व्यक्ति ने साइन कर दिया और उसका नाम ड्राफ्ट सूची में आ गया, डुप्लीकेशन तभी हो सकता है जब एक व्यक्ति ने 2 बार इन्यूमरेशन फॉर्म साइन किया हो. आपके माध्यम से मैं देश के सभी सॉरी ये ने
डुप्लीकेशन तभी हो सकता है अच्छा, जब एक व्यक्ति ने 2 बार इन्यूमरेशन फॉर्म साइन किया हो। आपके माध्यम से मैं देश के सभी मत oh wait, so he's admitting that the duplication can happen, but only if you have signed it twice. So is that what happened in Bihar? Because there are duplicate votes still in Bihar. After the SIR, in the final roll, there are duplicate votes. So did they like sign it multiple times? Is that how it happened? बताऊं कि ये बतलाना भी चाहता हूं कि हो सकता है कि आपके किसी पुराने जगह वोट अगर बना रह गया हो तो आपके पास घूमते फिरते वो इन्यूमरेशन फॉर्म भी आएगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म पर ही दस्तखत करके जमा कराना है। इस स्थिति में कोई डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने की आवश्यकता नहीं होती। What? Did he did not just say that. He's saying that they're going to completely depend on the enumeration bit. So essentially, if you sign it, we request you please sign it only once. But if you don't, क्या कर सकते हैं? तुम्हारा नाम आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा. They're not going to run any deduplication software. They started the ERO net in 2018 for this very reason. And he's now openly saying कि deduplication software use ही नहीं करेंगे. Why? Why not? I don't get it. What the actual F? और चूंकि हर व्यक्ति सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म दे रहा है तो उस समस्या का निदान हो जाता है। नहीं वैसे होता भी है। कानूनी तौर से अगर एक से ज्यादा जगह अगर किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम है तो वो कानूनी अपराध माना जाता है। इसीलिए चूंकि पहले के विगत वर्षों में चूंकि माइग्रेशन इतना ज्यादा हुआ तो शायद इतना ध्यान नहीं दिया हो लोगों ने, लेकिन अब SIR के बाद मेरा निवेदन रहेगा सभी मतदाताओं से कि वो ऐसा करेंगे और बिहार में सभी ने इसका स्वागत भी किया और बड़े अच्छे तरीके से हुआ। Okay. So if your name appears twice after the SIR, friends, you might go to jail. That's what he just said. It's a कानूनी अपराध. So पहले हुआ होगा, क्या कर सकते हैं? But after this, if your name comes twice, it is on you. Wrongful inclusion of foreigners. कई बार अगर किसी व्यक्ति ने जो कि हमारे देश का नागरिक नहीं है और आने के बाद अगर उसने कुछ कागज बनवा लिए हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा जो हमारी प्रेजेंटेशन थी कि सबसे पहले इन्यूमरेशन फेज में हम ये मिलान करेंगे कि 2002, 3 या 4 में आप या आपके वरिष्ठ जो वंश के लोग थे वो कहाँ थे। अगर उससे मिलान हो जाता है तो फिर ये बात खत्म हो जाती है। जो लोगों का मिलान नहीं होगा उनको नोटिस जारी होगा और नोटिस जारी होने के बाद उन्हें वो कागज दिखाने होंगे और उसके साथ साथ ये भी बतलाना होगा कि 2003 में वो कहाँ थे। ये करना बहुत आवश्यक है। Okay. So they get to decide basically. Sir, Banna from Matham Delhi from here, sir. Please, sir, So there is no, by the way, you do realize what he said, right? That enumeration form that you fill, so you will have to fill your details and someone who was in the 2003 list or whatever, if you were in it, or your relative, your dad, mom was in it, right? That's what he said. But what he said after that is that notices will be sent to people who they think are not valid that way, are not matching. So it is still up to the DM and the ERO and the SDM, ERO and the BLO and whoever the officers are, to decide who they send notices to. So even the enumeration, filing and matching is not technically a guarantee that you will be in the voter list. So they might get selective about this. It is completely being left to the officers of the district and the local level to decide whether you get to be on the voter roll or not. We will take all the questions. Sir, we've already answered your question. No, No, you haven't. Liar. Sir. Illegal immigration. Wait, he still hasn't answered many. Wrongful inclusion. What will you do to restore faith in the election commission? Incorrect documents. How will people fix it? What is this, yaar, Gyanesh?
कुछ नहीं आंसर कर रहा है ये. Sir, all political parties from Kerala had demanded to postpone the SIR in Kerala. I am from here, sir. I'm Banna from Mathinam Daily. All political parties demanded postponement of SIR in Kerala, and Kerala Chief Electoral Officer, he also demanded the postponement. I think he recommended, even, but you decided to conduct the SIR in this first phase. सर गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत से. सर सवाल यह है कि चूंकि 12 राज्य हैं और 12 राज्य की परिस्थितियां अलग हैं, क्या स्थानीय तौर पर जो इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कुछ अलग सूची भी रखी गई है राज्यवार क्या, जिससे मतदाताओं को सहूलियत हो, जिनको नए तौर पर जुड़ना हो, जिनका नाम पुरानी मतदाता सूची में ना हो, तो क्या उनके लिए अलग तमिलनाडु के हिसाब से या बाकी राज्यों पुडुचेरी के हिसाब से जो अलग अलग सरकारी आई कार्ड जो है वो इशू किए जाते हैं, उनके आधार पर भी क्या वो अपना नाम जो है वो मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. सर मैं INS से अखिलेश हूँ. पहली बार जब आपने सर इधर हाँ, इनसे I'll take super chats in a bit. ये खत्म होने के बाद शुरू किया तो काफी राजनीतिक विरोध झेलना पड़ा चुनाव आयोग को. राजनीतिक दल सड़कों पे आए, तमाम आरोप लगाया. आप कह रहे हैं कि अपील 0 थी. इसका मतलब कि क्या राजनीतिक दलों ने गुमराह किया था? और आगे चूंकि आप 12 राज्यों में करा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां ना आए, इसके लिए क्या आयोग कोई गाइडलाइन जारी करेगा? Yes, sir, Vincent from the Telegraph newspaper. Yes, few questions. One, during the enumeration phase, would electors be allowed to submit their documents if they have them? Two, children whose parents aren't known, orphans and so on. What are the provisions for them to fill up that column where they have asked for the parents thing? And three, finally, in Kerala, there are local body polls which are expected to happen soon. So will you all have staff to do the SIR work? Will there be both level officers who will be available for doing the SIR work? Give it, Vrinda. तो आपने Please. एक सवाल ये आया था कि जो इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो 11 हैं, जिसमें आधार आइडेंटिटी के लिए 12वें तौर से जोड़ा गया है, ये इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगभग सभी CEO से चर्चा करके बनाई गई हैं. बट फिर भी जब हियरिंग हो और उस समय ये सिद्ध करना हो किसी को अपनी जांच में कि मैं नागरिक हूं, तो वो कोई और अगर डॉक्यूमेंट देगा तो उसके ऊपर ERO विचार जरूर करेंगे. इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बाय एंड लार्ज यही रहेगी. इट्स इंडिकेटिव. आपको बताना चाहता हूं. So essentially what they're saying is that it is completely dependent on the ERO whether they accept a document or not. Yeah, it's completely left to the ERO कि तुम तुम्हारा देख लो whether you want to accept this person as a citizen or not based on the document they're showing. जैसा कि मैंने पहले कहा था, संविधान के अंतर्गत निर्मित सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने दायित्व का निर्वहन करना होता है. चुनाव आयोग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है और मैं मानता हूं कि संविधान सभी संवैधानिक संस्थाओं के लिए सर्वोपरि होता है. जहां तक बिहार में राजनीतिक दलों की तरफ से कुछ शब्द कहे गए, उन्होंने SIR का विरोध राजनीतिक दलों ने किया होगा ऐसा चुनाव आयोग नहीं मानता. क्योंकि जमीनी स्तर पर 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स ने सक्रिय तौर से बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ और मतदाताओं के साथ मिलकर काम किया. अकेले बूथ लेवल एजेंट्स नहीं, हर जिले में राजनीतिक दलों के जो जिला प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने भी सक्रिय तौर से अपना योगदान दिया. इसी तरीके से राज्य स्तर पर भी CEO के साथ मिलकर सभी राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत भी किया. हम लोग जब बिहार गए थे तो सभी राजनीतिक दल हमसे मिले भी थे और सबने ये बात हम लोगों से कही. अब जहां तक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बात है, उनके ऊपर चुनाव आयोग टिप्पणी नहीं करता है. इन्यूमरेशन फेज पर फेज में कोई भी डॉक्यूमेंट देने की किसी को आवश्यकता नहीं है. सिर्फ और सिर्फ मिलान और मैचिंग होगी. No documents in the first phase. यहाँ तक एक विषय में भूल गया, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस की बात केरला में की गई थी. चूंकि वहां भी लोकल बॉडी इलेक्शंस नोटिफाई भी नहीं हुए हैं और इसीलिए SIR वहां पर अनाउंस कर दिया गया है. ओके. जहां तक स्टाफ की बात है, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची या मतदान कराने के लिए जितने भी स्टाफ की जरूरत होती है वो राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 326 सब क्लॉज 6 के अंतर्गत देने के लिए बाध्य होती हैं और संविधान का सम्मान सभी संवैधानिक संस्थाएं करती भी हैं.
जहां तक उन बच्चों की बात है जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो उन बच्चों के पास ये इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही, तो इंडिकेटिव होंगे ही। होंगे। और दूसरी बात, होंगे ऐसे बच्चे इंडिकेटिव जिनके डॉक्यूमेंट्स। माँ बाप भी नहीं है, तो कहीं तो उनके माँ बाप होंगे, और जहां उनके माँ बाप होंगे उनसे उनकी मैचिंग और फिक्सिंग जो सॉरी व्हाट, लाइक इनके माँ बाप नहीं है बट कहीं तो उनके माँ बाप होंगे। सो बेसिकली इलेक्शन कमीशन इज गोइंग टू डू द जॉब ऑफ फाइंडिंग मिसिंग चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। उनके माँ बाप। दूसरी बात, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप भी नहीं है, तो कहीं तो उनके माँ बाप होंगे, और जहां उनके माँ बाप होंगे उनसे उनकी मैचिंग और फिक्सिंग जो मैचिंग और He did not just say that. जिनके माँ बाप नहीं है उनके कहीं तो माँ बाप तो होंगे, तो हम मैच कर देंगे। ज्ञानेश की जाएगी ये मतदाता सूची से, वो बीएलओ भी कर लेगा, और उसमें काफी कुछ काम पहले भी हो चुका है। they're going to find lost children. कुंभ के मेले में अगर आप बिछड़ गए हो तो इलेक्शन कमीशन विल फाइंड अ वे टू फाइंड योर पेरेंट्स। So, as you just mentioned, there will be no document required during the enumeration phase. Now, this is a very, very big shift from Bihar, where this was also a worry point because everybody had to go looking for documents. Also, your enumeration form has stated. Sorry, he didn't answer the question about zero appeals. So this zero appeals thing, someone asked, were there actually any appeals and where the political parties gumrah kar rahe the? So he didn't really answer that question. Required documents he did, Kerala he did, local election he did. Change this time. You've got a column for previous SIR linkages. So, first, if you could explain the reasoning behind these shifts in the SIR process or the form. And two, you just mentioned that a lot of linking has already been done in these 12 states before embarking on phase 2, and this will make the SIR process easier. Would it mean that the Election Commission was not adequately prepared when it launched the SIR in Bihar? Sir, I'm Ruben from Malayalam Manorama newspaper. Sir, here. So my question is also regarding the local body elections in Kerala. There is a confusion actually. The local body election is due. As per your schedule, SIR will go along with the local body election at the time of the process will be at the time of local body election. It's the local body. It is due in November or December. So how has will a you? Notification been issued? How will you? Has a notification been issued? Okay. How will you manage the conflict regarding the local body elections? There's no conflict. So has there is been no any demand? conflict. From CNN News 18, sir. Has there been any demand to provide security to the booth level workers in West Bengal? Has Central Security, has any such demand come to you? Is it possible to grant such a security? So, Brinda from Hindustan Times. My question is that you said that deduplication wouldn't be required because even with people holding 2 voter ID cards, they'll have to fill just 1 enumeration form and they should be filling 1 enumeration form. I didn't get your question. So, you said that deduplication wouldn't be required because of SIR process pan-India. So, with regards to that, do you think that the problem where an individual holds 2 voter ID cards or EPIC cards, will that get resolved because of SIR? And secondly, adding to Anubhuti's question, you mentioned 2 big changes from Bihar SIR and now pan-India. So, are there any more changes and can you give more information on that? Yes. सर आई एम हियर प्लीज। मुकेश कुमार सिंह मेरा नाम है, मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। एक चीज़ देख रहे हैं सर हम लोग कि जो कैंडिडेट्स हैं, आप जैसे कि इंश्योर करना चाहते हैं कि जो भी एलिजिबल वोटर हो उसको उसका वोटिंग राइट मिले, उसी तरीके से जो भी एलिजिबल कंटेस्टेंट्स हैं चुनाव में, हम ये देखते हैं कि स्क्रूटनी के बाद जिन लोगों का नॉमिनेशन किसी रीजन से रिजेक्ट होता है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के ऊपर ये पत्रवार्ता नहीं है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के ऊपर जो भी निर्णय लेना, आप मेरा सवाल सुन लें, अगर आपको लगता है कि इसका मैंने जवाब देना तो ना दें। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के ऊपर पब्लिक कॉन्फ्रेंस नहीं होती। मर्जी आपकी। यस, पूनम जी। सर, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि अभी जो 12 राज्यों में SIR होगा, क्या 12 दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया जाएगा? और दूसरा प्रश्न, एक राज्य जिसमें SIR की घोषणा हुई है, बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, तो क्या चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा? This was already answered, I think. जो BLOs की सिक्योरिटी से संबंधित एक विषय उठाया गया, चुनाव आयोग को पूर्ण विश्वास है कि कानून व्यवस्था ठीक रूप से इन 12 राज्यों में चलेगी और इस तरह की आवश्यकता न पड़े, ऐसी हम कामना करते हैं। So yeah, I mean, डुप्लीकेशन की जहां तक बात थी, शायद इस विषय को और गहराई से समझने की जरूरत है। Okay. एक व्यक्ति का एक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट होता है। Yes. और वो व्यक्ति अगर उस इन्यूमरेशन फॉर्म पर दस्तखत करता है, उसको BLO वेरीफाई करता है, तो उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाता है। Okay.
अगर उस व्यक्ति के एक से ज्यादा जगह नाम है तो उतने इन्यूमरेशन फॉर्म अलग अलग जगह प्रिंट होंगे, जितने भी नाम है सबके प्रिंट होंगे। तो जब तक वो व्यक्ति मानसिक तौर से कानूनी अपराध करने के लिए तैयार है तभी 2 इन्यूमरेशन फॉर्म पर वो दस्तखत करेगा, अन्यथा एक पर ही करेगा। बाकी ये टेक्निकल और श्रोडिंगर इक्वेशन और मैथमेटिकल डीडुप्लीकेशन जो चीजें होती हैं वो तब की जाती हैं जब फील्ड टू पर हाउस टू हाउस सर्वे नहीं किया जा रहा हो। ये फिजिकल फील्ड टू फील्ड पर्सन टू पर्सन एक सर्वे है जो कि Okay, sorry, this is absolute bullshit, by the way. This whole thing that he's saying, ki, you know, 2 people will file enumeration forms and whatever. Let's say you are, like I am in Delhi and I was there earlier somewhere and my name is there in the electoral list. So enumeration forms will be printed in both places, which is Delhi and that place. The thing is, his logic is ki we don't need to use deduplication because I will only sign my form here. I won't sign it there. But we saw it in Bihar. We saw it during the SIR. Even our friend Ajit Anjum had done multiple videos on this where the BLOs themselves were signing the forms in panic. So you don't even need to be there. Someone else will sign on your behalf. How will you know? Election Commission will say later, ki, oh, how did you sign the enumeration form in that place also? And that person will not be aware completely that their form was signed elsewhere as well. This is exactly what happened with the deletion files that Rahul Gandhi had said. Someone else had filled in forms in name of someone else and the people didn't even know. There was literal identity theft that was allowed by this election commission in the case of Alandh constituency when it came to deletion of votes. Also, Form 6 भी ऐसे भरे जाते हैं. So how do you know that is the person who is signing it? This is such an arbitrary bullshit thing to do. Oh my God. Like, if you are a political party that wants to do unlawful things like vote chori, this is such a perfect system for you. Perfect system. And also, किस पे लगेगा? Citizen पे लगेगा. So if someone signs my form in my name somewhere else, मेरी लगेगी. If it's a political party who signs it in my name and then ultimately ends up voting in my name there, and later the election commission says, अरे तेरे 2 बार कैसे आए? I'm like, मेरे को क्या पता बे? मैंने तो दिल्ली में किया है. Such bullshit system. This is such a scary and so convoluted what they are doing now. जो कि अगर आंकड़ों में आप देखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा सर्वे. जहां तक ये 11 दस्तावेजों की बात, ये सारे 11 दस्तावेज सभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से डिस्कस करके ही बनाए गए हैं. और अगर हियरिंग के समय 11 दस्तावेज, there are 12 दस्तावेज अगर कोई व्यक्ति देता है जिससे कि ये प्रमाणित हो जाता है. Why does he keep saying 11 दस्तावेज? I saw 12 including आधार. Clearly इनको मूड नहीं है आधार एक्सेप्ट करने का. Like all roundabout answers he's giving and now he's saying 11 documents. The question was about 12 documents, by the way. The question was asked, what are these 12 documents and will you vary them according to region? Which is a very decent question. कि इतना बड़ा country है, सब जगह 11 documents same थोड़ी होने वाले हैं. Like will you include some other documents in particular states? And he's saying 11 documents. इसको आधार नहीं accept करना है. नहीं करना है इसको. भारत का नागरिक है तो स्वाभाविक तौर से उस दस्तावेज को ईआरओ नजरअंदाज नहीं करेंगे. प्रशासनिक फेरबदल एसआईआर अनाउंस करने से पहले हर राज्य सरकार का अधिकार है और वो प्रशासनिक फेरबदल कर सकती है. अगर एसआईआर के अनाउंसमेंट के बाद भी अगर उन्हें कोई प्रशासनिक फेरबदल करना होता है तो चुनाव आयोग की उन्हें परमिशन लेनी होती है. जब हमने बिहार का एसआईआर कराया था, जब चुनाव आयोग ने उस पर 24 जून को अपने आदेश जारी किए और उसके बाद इन्यूमरेशन फेज रही और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस की फेज रही, तो उसके क्रियान्वयन में ये पाया गया कि शुरुआती दौर में दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकांश जो मतदाता होते हैं वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं या वहीं के रहने वाले होते हैं, तो दस्तावेज लेने की आवश्यकता ही नहीं है. सच बात तो ये है, बिहार का अगर एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही कम लोगों को और दस्तावेज देने की जरूरत पड़ी और इसीलिए उस सीख को ध्यान में रखते हुए जब इन 12 राज्यों में जब हम लोग एसआईआर करा रहे हैं
तो इस बात का निर्णय लिया गया कि कागज तभी मांगे जाएं जो इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं जब उसका व्यक्ति का 2003-2004 से मिलान नहीं हो पा रहा है. So when they did it in Bihar, they started asking for documents. Then midway through they realized they don't need any documents, so therefore they started collecting only enumeration forms. Wait, did he just admit to the fact that they have completely bungled up the SIR exercise? That was, and this is in an election state, by the way. Did he just admit that he completely bungled up the entire voter list of Bihar because he changed the rules midway, and this is an election year? Exactly, small floaty, because this should come up in the Supreme Court, man. Like, he just admitted that they messed up in Bihar. What the hell, Ganesh? Okay, so what did we learn, friends? What did we learn? Let's review a little bit. Okay, so first thing, they bungled up the Bihar SIR, as I said. He admitted straight up that, like, after a few days they realized, oh shit, documents nahi lena chahiye, baad mein lena chahiye. So now for the entire country, they are not going to take documents during the enumeration phase. Second is, now what you have to do is BLOs will come at least 3 times to your house to give you the form. You have to fill it. You have to also point out who you are related to from the 2003 voter list, or if you were in it. And if you don't have anyone, then you will get a notice. Also, even if they don't think that you have anyone, so it doesn't mean that it is automatically done. If they think that you have to reprove your thing, that you are not actually the son or daughter of this person who you are saying you are the son or daughter of, then they will send you a notice. After they send a notice, they will ask for certain documents. Now the thing is, how will you know which documents? They have given an indicative list, which means these are not the only documents they will take. Aadhaar, maybe not. All the documents they gave, the 11 documents, are the same as the Bihar SIR. They showed a list. But then you might go there, you might take one of those documents and they were like, nahi, you have to give something else, because it's completely based on the officer who is going to do this scrutiny, that they will accept or not accept documents. If they don't accept documents, then you can appeal. You get 15 days to appeal after that. After the final list, mein your name is deleted, not deleted, whatever it is. Okay. Illegal immigrants question, 0 answer. Did not answer. Conflict with sitting chief ministers, did not answer. Will there be bloodbath in West Bengal? It is a volatile state. I guess state government will help us and we will help state government. Constitutional role hai. It will all be well, according to Ganesh Gaslighter. Okay. Deduplication software, it straight up said use nahi karenge. In Bihar, we saw that there are duplicate names. There are duplicate names in Bihar. Still, in the final list. And also, Reporters Collective did a report saying that the Election Commission themselves admitted that they didn't run a deduplication software, which points out whether there are, even faces are matching photograph wise. Okay. Did not use it. Now he's straight up saying कि हम करेंगे ही नहीं, because his logic is that everyone will only fill one enumeration form only. Yeah, even if there are 2 names, why would you fill 2 forms? If someone fills it on my behalf, I'm the criminal. So if political parties are up to no good and they are the ones who sort of fill it in my name somewhere else, or file a form 6 in my name, because they're allowing that also, a new addition of a voter. If they do that, then it's on me apparently. Like, I'm the criminal. Inka koi galti nahi hai. It's the most moronic nonsense thing I've heard in a while. Wrongful inclusion, no answer. Kerala postpone nahi karenge. Oh, no answer on the appeals part also. Required documents, goal. Local elections, he answered. Security for BLOs, again said that, oh, state government will do the security. Deduplication, nothing.
Nominations rejected. In the end, that's what was happening. Someone asked, what about the nominations that you rejected in Bihar? And he says that no, we are not going to talk about it. This is not that press conference. We don't talk about these things because political leaning दिखेगा election commission का. Lol, Ganesh, lol. Are you serious? And then again, the final thing was about 12 documents. It turned it into 11 documents very nicely. That's basically the roundabout what happened. That was the revision of the entire thing. Yeah, let me know what you thought. General Janta, I'm now going to chat with chat. They have many thoughts, I'm sure. And if you want to be a part of these recordings, please do become a member. Please join. I have a small request for you this time. If you have been enjoying the content on this channel, if you have been enjoying the reaction videos and the stuff I do, please like karo. The algorithm gods have been punishing me because I took an off for Diwali and Durga Puja and now I'm screwed. My revenue is down, my views are down, everything is down. So please, if you like me, if you think there is some value in what I do, please like karo, share karo. I don't usually ask this, but this month is particularly bad for me, revenue wise. Yeah, it's sad. So please do, and also become a member if you want to support the channel. Thank you so much. I will see you next time. Bye.